Welcome back, students. Let us start civics portion, chapter number 18, and the name of the chapter is Democracy and Equality. So, we shall start by the meaning of the term democracy. What does the term democracy means? The word democracy means rule of the people. A country, when it is ruled by the people, that system is called democracy. So, this chapter is democracy and equality. First of all, let us see the definition of democracy. According to Abraham Lincoln, democracy is a government of the people, by the people and for the people. अब्राहम लिंकन के अनुसार डेमोक्रेसी क्या है? एक गवर्नमेंट है. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, लोगों के लिए है, बाय द पीपल, लोगों से है, एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए है. सो इन डेमोक्रेसी व्हाट वी फाइंड? Common people are all in this type of government. Okay, what is the most important feature of democracy? Most important feature, it is equality. Equality is the most important feature of democracy. That means in such type of government, all the people living in that land area are equal in all aspects. The question arises here, how we are equal? Who provides us equality? Answer is the Constitution. The Constitution provides equality to all the people of the country. Okay. Now let us see the definition of Constitution. It is a set of rules and regulation made and agreed upon by the people. Constitution क्या है? Constitution एक सेट है रूल्स एंड रेगुलेशंस का, लॉज का एक सेट है जिसको कौन बनाया है? मेड बाय द पीपल एंड एग्रीड अपॉन बाय द पीपल. एग्रीड अपॉन बाय द पीपल मतलब लोग उसको अपने ऊपर लागू करने के लिए तैयार हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु मेड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? आंसर इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया, कंसिस्टिंग ऑफ 389 मेंबर्स. इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल मेंबर्स थे 389 जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में. व्हेन दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड, कब ये बना था? 9th December 1946, बिफोर इंडिपेंडेंस. The first meeting of Constituent Assembly was held on 9th December 1946. Final writing work was completed on 26 November 1949. ये 26 November 1949 में complete हुआ, and when it came into effect on 26 January 1950, the day when we declared our Republic Day. So by that time we started celebrating 26 January as our Republic Day. This Constituent Assembly was divided into several committees. One of those committees was Drafting Committee, and the chairman of Drafting Committee was Dr. B.R. Ambedkar, was the chairman of Drafting Committee, who is called as the father of Indian Constitution. ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था
इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। नाउ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was the permanent president of this constituent assembly। इस constituent assembly का permanent president कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। The next question, how Indian constitution provides equality? equality किस तरह से देता है Indian constitution? Number 1, by uplifting the downtrodden, जो poor people हैं, जो oppressed group है, उसको uplift करके, किस तरह से? by applying the policy of reservation देती है, by assuring social, economic and political equality to all the citizens of this country। Second point, making India a secular country। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे कंट्री को सेक्युलर कंट्री, सेक्युलरिज्म डिक्लेयर करता है, जिसका 2 फीचर है। पहला, ऑल द सिटीजन्स आर फ्री टू फॉलो एनी रिलीजन इन दिस कंट्री। हर कोई फ्री है कोई भी रिलीजन को अपनाने के लिए। सेकंड, देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन इन दिस कंट्री। इस कंट्री का कोई अपना एक पर्टिकुलर धर्म नहीं होगा। थर्ड, ग्रांटिंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट करता है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जिसके तहत 1 मैन 1 वोट का प्रोविज़न है। ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, यूनिवर्सल का मतलब है मिंट फॉर ऑल, सभी के लिए है ये। एडल्ट मतलब जिसका एज 18 ईयर्स एंड अबव हो गया है। फ्रेंचाइज मतलब वोट, यानी वोट देने का अधिकार उन्हीं को है, केवल एडल्ट्स को है जिनका एज 18 ईयर्स एंड अबव हो गया। यहाँ पे एडल्ट का मतलब भी समझा दिए हैं। एडल्ट मीन्स हु इज़ मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्शन प्रोसीड्योर ऑफ इंडिया। इंडिया में इलेक्शन का प्रोसीड्योर क्या है, उसका सिस्टम क्या है। इन आवर कंट्री पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम काम करता है। मल्टी पार्टी सिस्टम यानी कि हमारे कंट्री में बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। आप नाम जानते हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, जनता दल यूनाइटेड है, इस तरह से CPI, CPIM, बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। मोर देन 1000 पॉलिटिकल पार्टीज़ एग्जिस्ट इन आवर कंट्री, जो कि 2 भाग में डिवाइडेड होता है, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन। जो रूल करते हैं उसको रूलिंग पार्टी बनाते हैं, जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं उसको रूलिंग पार्टी, और जो विपक्ष में बैठते हैं उसको अपोजिशन कहा जाता है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी प्रोसीड्योर है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वो कैंडिडेट हैं जो इलेक्शन तो लड़ना चाहते हैं लेकिन वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते हैं। नाउ कोलिशन गवर्नमेंट मतलब जब 2 और 2 से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ एक साथ मिल करके गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट कहा जाता है। नाउ लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। व्हाट इज़ ए पॉलिटिकल पार्टी? एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हैविंग इट्स ओन policies and programs। Political party is an organized group having its own policies and programs। अपना जिसका नीतियां हैं वही ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है। Who forms government? गवर्नमेंट कौन बनाता है? वो पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट बनाता है जिसको मेजोरिटी मिलता है। हु सिक्योर मेजोरिटी, दैट इज़ मोर देन 50% वोट्स। जिसको मोर देन 50% वोट्स मिलता है वो गवर्नमेंट फॉर्म करता है। नाउ द नेक्स्ट इज डिफिनीशन ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट का डिफिनीशन क्या है? व्हेन 2 or more than 2 political parties join hands to form government
इट इज़ कॉल्ड कोalition गवर्नमेंट। जब दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी हाथ मिलाते हैं गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोalition गवर्नमेंट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। हाउ डू पीपल गार्ड देयर राइट्स? डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में किस तरह से लोग अपना अधिकार को बचाते हैं? आंसर इज बाय कीपिंग अ क्लोज वॉच टू देयर representatives, to the activities of their representatives। अपना representatives यानी प्रतिनिधियों का activities को closely watch करते हुए। For wrong works they don't give votes to the same representative। अगर उनके representative कुछ गलत काम कर रहे हैं तो फिर दोबारा उसको वोट नहीं देते हैं। People change their representatives as per their wishes। अपने इच्छा के अनुसार वे अपना रिप्रेजेंटेटिव फिर बदल देते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी को हम लोग 4 भाग में बांट करके देखेंगे। राइट टू इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, नंबर 1, सिटीजन्स इक्वल बिफोर लॉ। लॉ यानी कानून के सामने सभी नागरिक बराबर हैं, ना कोई बड़ा ना छोटा। राइट टू इक्वालिटी का सेकंड मीनिंग है देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन एट्सेट्रा। जाति या लड़का लड़की या धर्म के आधार पे कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। थर्ड इक्वालिटी का, राइट टू इक्वालिटी का थर्ड प्रोविज़न है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। सभी नागरिक को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलना चाहिए हर जॉब में, हर तरह का काम में। नंबर 4 इज़ इक्वल प्रोटेक्शन। सभी नागरिक को इक्वल प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, यानी कि प्रोटेक्शन के मामले में ये नहीं देखा जाएगा कि कौन धनी है या कौन गरीब है। इंडियन सिटीज़न होना ज़रूरी है और हर सिटीज़न को बराबर वे में प्रोटेक्शन देगी लॉ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डज एवरीवन एंजॉय इक्वल अपॉर्चुनिटी इन प्रैक्टिकल? क्या सचमुच में सभी कोई इक्वालिटी को एंजॉय करते हैं? आंसर इज अ बिग नो। आंसर है नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे? इसको हम लोग नेक्स्ट डे देखेंगे कैसे। और ये याद रखना है कि इन आवर डे टू डे लाइफ हम अपने रोज़ के जो जैसे जैसे समय गुजरता है डेली, वी सी मेनी पुअर पीपल, बहुत सारे पुअर पीपल, दे आर स्ट्रगलिंग फॉर इक्वालिटी। वे इक्वालिटी को पाने के लिए स्ट्रगल करते हुए नज़र आते हैं, खास करके जो गरीब तबके के लोग हैं। ओके, दिस मच टुडे स्टूडेंट्स। नाउ tomorrow we shall continue this chapter, the leftover part. Till then, all of you, till then, goodbye to all of you. Welcome back students. We were doing chapter number 18, democracy and equality. In our last class we were discussing that our constitution banned untouchability and the awarding of titles which were in practice during the time of the British rule. So titles were awarded to Indian people like Raj Bahadur, Khan Bahadur. Such a practice was abolished by the constitution. कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से इसको बैन कर दिया है, लेकिन हैरानी का बात है कि खास करके अनटचेबिलिटी का प्रैक्टिस आज भी हम लोग देखते हैं कि लोगों में ये प्रेजेंट है, लोग इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें 2 कहानियों में जाना होगा, विच इज़ गिवन इन योर बुक। 2 stories have been given in your book,
One story is related with Shekho. Shekho, who is a boy, एक लड़का का नाम है, who is 10 years old. 10 साल का लड़का है. उसका काम है to pick rags. कूड़ा करकट सबको उसका उठाने का काम वो करता था. कब से कब तक? From 4 AM early in the morning to 8 AM. उसके बाद वो इंगेज हो जाता है अपने फादर के साइकिल रिपेयरिंग शॉप में. और कब तक काम करता है? टिल लेट इवनिंग. देर शाम तक वो वहाँ पे काम करते रहता है. यानी कि इन्हीं सब कामों में उसका सारा समय चला जाता है. ही वांट्स टू गो टू स्कूल. वो स्कूल जाना चाहता है. ही वांट्स टू प्ले विथ हिज फ्रेंड्स, विथ अदर चिल्ड्रन, बट ही कांट. क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास समय ही नहीं है. ऑल द टाइम ही engaged himself in work. हमेशा वो काम में इंगेज रहता है. यहाँ पे सवाल ये उठता है, shouldn't he get the right to go to school? क्या उसे स्कूल जाने का अधिकार नहीं है? सेकेंड स्टोरी पे चलते हैं, which is related with Paro. Paro is a girl who is a flower seller girl. She sells flower at traffic signal. ये ट्रैफिक सिग्नल में फूल बेचा करती है. फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट. सुबह से लेकर के रात तक उसका यही काम है. शी रन्स बिटवीन व्हीकल्स रिस्किंग हर लाइफ. वो व्हीकल्स के बीच में चली जाती है फूल बेचने के क्रम में, अपने लाइफ को रिस्क करते हुए. इन रिटर्न व्हाट शी गेट्स? इन रिटर्न शी गेट्स only ₹1 for one flower bouquet. एक फ्लावर बुके के बदले में उसको ₹1 मिला करता है. हर फैमिली फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी इन हर विलेज. उसका फैमिली को फेस करना पड़ा अनटचेबिलिटी का प्रॉब्लम को. दे वर नॉट अलाउड टू यूज वेल belonging to upper castes. गांव का जो कुआं हुआ करता था अपर कास्ट का, उसको यूज़ करने के लिए उनको नहीं दिया गया. एंड दे वर फोर्स्ड टू लीव द विलेज. और उनको गांव छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया गया अपर कास्ट के लोगों के द्वारा. इट इज़ वेरी सैड टू नोट such type of discrimination which is still present in our society. In spite of several laws, in spite of several educational and awakening programs going on by the government, such a practice still exists, particularly in rural areas. गांव के एरियाज़ में ये ज़्यादा देखने को मिलता है हम लोगों को. Our government adopted 2 ways to implement right to equality. Right to equality को लागू करने के लिए हम लोगों का गवर्नमेंट 2 रास्ता चुनी है. पहला, laws were made to protect the right to equality. Right to equality को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉज बनाती है. फॉर एग्जांपल, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन एंड जॉब. एजुकेशन और जॉब के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी का प्रोविज़न देती है गवर्नमेंट. उसके लिए लॉ बना हुआ है, लॉ बनाई हुई है. सेकेंड स्टेप क्या गवर्नमेंट ले रही है? लॉन्च्ड स्कीम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑप्रेस्ड क्लास, दैट इज़ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. किनके लिए? फॉर एग्जांपल SC, ST एंड OBC. इनके बेनिफिट के लिए लॉज बना करके गवर्नमेंट राइट टू इक्वालिटी को लागू करने का कोशिश करती है. आवर नेक्स्ट हेडिंग इज़ सपोर्ट ऑफ पीपल. पीपल का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी लॉ को एग्जीक्यूट करने में. तो सपोर्ट ऑफ पीपल में हम लोग देखते हैं लॉज एंड गवर्नमेंट स्कीम्स
हैव नो मीनिंग विदाउट द सपोर्ट ऑफ द पीपल। जितना भी लॉ बना ले गवर्नमेंट, जितना भी स्कीम या प्रोग्राम तैयार कर ले, लेकिन जब तक लोगों का साथ नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है, वो लागू हो ही नहीं सकता है। Several government programs were launched for sending children to schools। पहले बहुत सारे प्रोग्राम बने कि बच्चों को किसी भी तरह से स्कूल भेजा जाए, बट एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट हम लोगों को नहीं मिला। यहाँ पे NDTV एक व्यक्ति का केस को सामने रख करके उसका प्रशंसा करता है। अ केस ऑफ अ पुअर स्टूडेंट नेम्ड राहुल। राहुल एक लड़का, एक स्टूडेंट का नाम है जो कि IIT को क्वालिफाई किया विद द सपोर्ट ऑफ आनंद कुमार, जिसको सपोर्ट मिला आनंद कुमार का। आनंद कुमार एक सोशल एक्टिविस्ट है, बिहार का रहने वाला है, और वो सपोर्ट करता है राहुल को IIT को क्वालिफाई करने में। तो इस तरह से उसके सपोर्ट से राहुल IIT, वो राहुल काफ़ी गरीब घर का लड़का था। हु वॉज द सन ऑफ अ फार्मर, पुअर फार्मर। IIT के बारे में थोड़ा जान लीजिए। द फुल फॉर्म ऑफ IIT इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो 1951 में आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसको इस्टेब्लिश किए थे। इट इज़ एन ऑटोनोमस बॉडी ऑफ आवर कंट्री, और इससे साइंटिस्ट, इंजीनियर सब निकलते हैं। आप चाहें तो आप भी इसको अपना एम्बिशन बना सकते हैं। इसके लिए आपको 12th में कम से कम 75% मार्क्स रखना होगा। ओके, सपोर्ट ऑफ पीपल में ये बहुत ज़रूरी है समझना कि हर सिटीजन्स का ये मोरल ड्यूटी बनता है कि वो गरीब लोगों का मदद करे, ताकि गरीब लोगों को 3 बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है, नीड्स जो है, वो मिल सके। क्या है 3 बेसिक नीड्स? फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। Now let us move to the next topic, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। गवर्नमेंट क्या क्या काम किया है ध्यान दीजिए। गवर्नमेंट हैज़ एडप्टेड सेवरल मेजर्स लाइक लो इंटरेस्ट लोन्स प्रोवाइड की है कम इंटरेस्ट में। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, ताकि लोगों को स्वरोजगार मिल सके। लो बजट हाउसिंग, घर प्रोवाइड की है कम दाम का। विडो पेंशन, जो विधवा है उनको पेंशन देने का काम की है गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट में चलते हैं। गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड सेवरल लिटरेसी प्रोग्राम्स, बहुत सारा एजुकेशनल प्रोग्राम्स भी लेकर के आई है ताकि लिटरेसी रेट इंडिया का बढ़ सके। लाइक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन और एडल्ट एजुकेशन। तो ये सब लिटरेसी प्रोग्राम है जो कि गवर्नमेंट लेकर के आई है ताकि इंडिया में लोगों का लिटरेसी रेट बढ़ सके। थर्ड है न्यूट्रिशियस मील्स वेयर प्रोवाइडेड फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए न्यूट्रिशियस मील्स का प्रोविज़न की है गवर्नमेंट अंडर मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम चला करके ये बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ मिड डे मील स्कीम। इसके चलते बहुत सारे गरीब बच्चे अब स्कूल आना शुरू कर दिए हैं। नंबर 4, रिजर्वेशन पॉलिसी लेकर के आई है गवर्नमेंट फॉर SC ST एंड OBC। ये 49.5% है रिजर्वेशन स्कीम SC ST और OBC के लिए, जिसमें SC के लिए, ST के लिए 22.5% है और OBC के लिए 27% रिजर्वेशन इनको दिया गया है। तो इनको रिजर्वेशन क्यों दिया गया है? टू लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड
dignity with other citizens of our country, हमारे कंट्री में, ताकि ये लोग ठीक तरह से सम्मानजनक ज़िंदगी जी सकें, इक्वालिटी मिल सके इन लोगों को। नंबर 5, पुअर पीपल को जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री यूनिफॉर्म एंड बुक्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, स्टाइपेंड्स देती है, स्कॉलरशिप देती है गवर्नमेंट। ऑल दिस आर प्रोवाइडेड फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए ये सब प्रोविज़न है गवर्नमेंट का। पॉइंट नंबर 6, गर्ल्स स्टूडेंट्स ऑफ वीकर सेक्शंस, जो गरीब तबके के गर्ल्स स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी रिजर्वेशन दी है गवर्नमेंट, रिजर्वेशन कोटा उनको दिया गया है। कहाँ पर? इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स बोथ, दोनों ही जगह गर्ल स्टूडेंट जो कि वीकर सेक्शन को बिलोंग करती है उनको रिजर्व कोटा दी है गवर्नमेंट, ताकि उनका पोजीशन और बेहतर हो सके, एजुकेशन मिल सके। Okay, this much in this chapter, student. Now we shall take up the exercise part of this chapter tomorrow. Till then, bye to all of you. Welcome back, students. We are doing chapter number 18, democracy and equality. Today we are going to start the exercise part of this chapter. So let us start the exercise of chapter number 18. First of all, part A covers MCQ, multiple choice questions. But students, चूँकि हम लोगों को स्पेस चाहिए, हम ऑप्शंस नहीं लिए हैं MCQ का, और डायरेक्ट हम लोग आंसर ले रहे हैं। Let us start. Number 1, the right to vote is guaranteed to Indians who are, right to vote किसको दिया जाता है इंडिया में? आंसर है सिटीजन्स ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन्स को ही राइट टू वोट दिया जाता है। नंबर 2, द मोस्ट सक्सेसफुल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट which increased the enrollment of school children in school is midday meal scheme. गवर्नमेंट का उस स्कीम का नाम बताना है नंबर 2 में, जो कि सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है बच्चों को, स्टूडेंट्स को स्कूल लाने में। तो आंसर है मिड डे मील स्कीम। नंबर 3 हम लोगों को बताना है वो फैक्टर which is not responsible for weakening of the Indian society. इंडियन सोसाइटी को कमज़ोर करने का फैक्टर जो कमज़ोर नहीं करता है, उस फैक्टर का नाम बोलना है। तो हम लोगों का आंसर है एजुकेशन। एजुकेशन किसी भी तरह से इंडियन सोसाइटी को कमज़ोर नहीं बनाता है। नंबर 4, अकॉर्डिंग टू प्रीएम्बल, इस वर्ड पे आना चाहेंगे। प्रीएम्बल, प्रीएम्बल क्या है? दरअसल प्रीएम्बल इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये प्रीएम्बल को पंडित जवाहरलाल नेहरू जोड़े थे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ द समरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल के अनुसार, हु इज़ कॉन्स्टिट्यूटिंग India into socialist, secular and democratic republic? तो आंसर क्या है? द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल के अनुसार इंडिया को कौन डिक्लेयर करता है सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? तो इंडिया के लोग डिक्लेयर करते हैं। नंबर 5, टू एंश्योर द डिप्राइव्ड children to fulfill their dreams, the government should not, जो डिप्राइव्ड चिल्ड्रन हैं उनका ड्रीम को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को क्या नहीं करना चाहिए? आंसर है द गवर्नमेंट शुड नॉट लीव देम टू फाइट फॉर देमसेल्व्स।
उनको लड़ने के लिए, अपने आप में लड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए. Now let us move to part B, which is fill in the blanks. Number 1, the dash is a document. हम लोगों को उस डॉक्यूमेंट का नाम बताना है that lays down the framework, structure and powers of the government. वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर को बताता है, फ्रेमवर्क को बताता है, पावर्स को बताता है? इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन में सारी बातें दी गई हैं कि गवर्नमेंट कैसा होना चाहिए. सो आवर आंसर इज कॉन्स्टिट्यूशन. नंबर 2, द डैश इज एन इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोडक्शन कौन देता है? आंसर इज प्रीएम्बल. Next, the dash system creates a social division in a nation. एक नेशन में सोशल डिवीज़न कौन क्रिएट करता है? आंसर है कास्ट सिस्टम, जिसका खात्मा बहुत ज़रूरी है अगर हम सोशल डिवीज़न को ख़त्म करना चाहते हैं. एक बहुत बड़ा फैक्टर है सोशल डिवीज़न का. नंबर 4, ईच डैश इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप having its own policies and programs. हमें उस ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का नाम बताना है जिसका अपना प्रोग्राम और पॉलिसी होता है. आंसर इज पॉलिटिकल पार्टी. लास्ट वन, many dash have been made to protect the right to equality. राइट टू इक्वालिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारा बना है. क्या बना है? आंसर है लॉज, यानी कानून. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव टू पार्ट सी, दैट इज ट्रू और फॉल्स. मैंने पूरा क्वेश्चंस कवर नहीं किया है, लिखा नहीं है स्पेस के कारण, तो मैं सभी सेंटेंसेस को पढ़ दे रहा हूँ. अकॉर्डिंगली आंसर हम लोग देख लेंगे. नंबर 1, ऑन 15 अगस्त 1947 इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक. इंडिया रिपब्लिक कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 में. 15 अगस्त 1947 हम लोगों का इंडिपेंडेंस डे है, इसलिए ये फॉल्स होगा. नंबर 2, आवर कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स वांटेड टू एराडिकेट डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन समाप्त करना चाहते थे हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम किए. इट इज़ ट्रू. थर्ड इज पीपल एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव फॉर अ फिक्स्ड टर्म, दैट इज़ 5 years. तो नंबर 3 हम लोग ट्रू लेंगे, क्योंकि 5 साल के लिए फिक्स पीरियड तक ही वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. नंबर 4, द लॉ डज नॉट गिव इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल. ये फॉल्स है, क्योंकि लॉ सबको इक्वल प्रोटेक्शन देता है. नंबर 5, द प्रोविज़न ऑफ रिजर्वेशन हैव नॉट रीच्ड एवरीवन. रिजर्वेशन का प्रोविज़न जो है वो सभी के पास नहीं पहुंचा है. ये सही है, इसलिए सही है क्योंकि अगर ऐसा होता तो SC ST OBC का पोजीशन अब तक ठीक हो गया होता. Now let us move to part D, short type question and answer. Question number 1, what is the मेन फंक्शन ऑफ एन अपोजिशन पार्टी? हम आप लोगों को बताए थे कि पॉलिटिकल पार्टीज 2 भाग में डिवाइडेड रहते हैं, रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी. क्वेश्चन है अपोजिशन पार्टी का क्या फंक्शन है? मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ अपोजिशन पार्टी इज टू चेक द एक्टिविटीज ऑफ द रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी का एक्टिविटीज़ को चेक करना इसका मेन काम है. और क्या काम है? एंड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पीपल. और पीपल का राइट्स को प्रोटेक्ट करना इसका काम है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई वाज रिजर्वेशन प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन कास्ट्स इन इंडिया? रिजर्वेशन कुछ ही कास्ट को दिया गया है, ऐसा क्यों है? तो आंसर हम लोग ले रहे हैं. रिजर्वेशन वाज प्रोवाइडेड फॉर सर्टेन कास्ट्स टू एंश्योर देयर प्रोपोर्शनेट शेयर, ताकि उनका शेयर मिल सके इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ. लाइफ का
हर फील्ड में उनका भी शेयरिंग हो सके, सो दैट दे कुड लिव अ लाइफ ऑफ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी। ये पुअर पीपल हैं, राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम इनका पोजीशन काफ़ी मिजरेबल हो चला था, तो इसलिए इनकी स्थिति को सुधारने के लिए रिजर्वेशन दिया गया इनको। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मेंट बाय सेक्युलरिज्म? सेक्युलरिज्म का क्या मतलब है? सेक्युलरिज्म को दो सेंस में लिया जाता है। नंबर 1, एवरीवन इज फ्री टू फॉलो द रिलीजन ऑफ वंस चॉइस। पहला सेंस है सेक्युलरिज्म का कि हर आदमी फ्री है अपना अपना धर्म को चुनने के लिए। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा रिलीजन अपनाएं। नंबर 2, द स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। यहाँ पे स्टेट का मतलब समझिए, स्टेट का सेंस कंट्री से होता है, तो कंट्री से भी होता है, यहाँ पे कंट्री से रिलेटेड है ये स्टेट वर्ड। तो स्टेट के पास यानी कंट्री के पास अपना कोई धर्म नहीं होता है सेक्युलरिज्म में। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कंसिडर्ड ए करेजियस स्टेप ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली? कंस्टिट्यूएंट असेंबली जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चुना, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब 18 ईयर्स एंड अबव को जो राइट टू वोट मिला है उसे ही हम लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। इसको करेजियस स्टेप क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडियंस वेयर इलिटरेट एंड पुअर एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। जब भारत को आज़ादी मिली तो बहुत सारे भारतीय वो गरीब थे और अशिक्षित थे। इसको ठीक तरह से समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि बिफोर इंडिपेंडेंस ब्रिटिश जो राइट टू वोट देते थे इंडियन पीपल को, वो मेनली वेल्दी पीपल को देते थे, रिच पीपल को देते थे, गरीब लोगों को नहीं देते थे। उन लोगों को दिया जाता था राइट टू वोट जिनके पास अपना ज़मीन हुआ करता था, अपना लैंड हुआ करता था। तो इंडिपेंडेंस के बाद यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का लाया जाना कंस्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये साबित करता है वो क्या किया इसमें कि 18 ईयर्स से अबव सभी को राइट टू वोट दे दिया, यानी कि उसमें पुअर भी शामिल हैं, इलिटरेट भी शामिल हैं, इक्वालिटी को इसमें अपनाया गया। इसलिए कहते हैं कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली का ये एक बोल्ड स्टेप था। नाउ लास्ट क्वेश्चन, नेम एनी 2 literary programs started by the government of India. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा निकाला गया 2 लिटरेरी प्रोग्राम्स के बारे में बोलना है, नाम लेना है यहाँ पे। पहला ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है और दूसरा एडल्ट एजुकेशन है। एडल्ट एजुकेशन मतलब जिनका एज 18 ईयर्स एंड अबव हो गया, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बुजुर्ग हो चले हैं लेकिन पढ़ नहीं पाए हैं, उनके लिए एजुकेशन का प्रोविज़न लाना। सो दिस मच today students, and tomorrow we shall take up part E. Till then, goodbye to all of you. Now let us start part E of the chapter number 18, democracy and equality. First question, mention the main provisions. We have to mention the main provisions of the right to equality. राइट टू इक्वालिटी का क्या क्या मेन प्रावधान है, मेन प्रोविजंस है, उसके बारे में बात करना है। राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 12 से लेकर के 35 तक कवर करता है, जिसमें कि बहुत इम्पॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है राइट टू इक्वालिटी। इसका मेन प्रोविज़न को हम लोग देखेंगे। There are 4 main provisions of right to equality. Number 1, all citizens are equal before the law. लॉ के सामने, कानून के सामने सभी कोई बराबर है, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव,
discrimination on the ground of religion, caste, gender or place of birth is prohibited. किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता है किस ग्राउंड पे, रिलीजन के ग्राउंड पे या कास्ट के ग्राउंड पे या जेंडर के ग्राउंड पे या प्लेस ऑफ बर्थ के ग्राउंड पे हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकते हैं, वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के तरफ से। थर्ड, एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सभी सिटीजन्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के लिए एंटाइटल्ड हैं, यानी सभी को बराबर का मौका हर फील्ड में मिलेगा बिना किसी भेदभाव का। लास्ट इज द लॉ गिव्स इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल। कानून सभी को इक्वल लेवल से देखता है और सभी को इक्वली प्रोटेक्शन देता है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। हाउ कैन the people keep a check on their representatives? लोग अपना representatives पर कैसे चेक कर सकते हैं, उनको रोका कैसे जा सकता है मनमानी करने में। वर्ड representatives, आप लोग देखते होंगे कि हम इलेक्शन के समय में वोट, बहुत सारे लोग वोट देने जाते हैं 18 ईयर्स एंड अबव। तो वोट देने के बाद जो मिनिस्टर्स बनते हैं वे रिप्रेजेंटेटिव कहलाते हैं। हिंदी में रिप्रेजेंटेटिव को प्रतिनिधि बोला जाता है। तो किस तरह से रिप्रेजेंटेटिव्स को यानी प्रतिनिधियों को किस तरह से चेक कर सकते हैं हम, ताकि वे किसी भी तरह का मनमानी ना कर सके। सो दो तरीका है। द पीपल कैन कीप अ चेक on their representatives in the following way। दो तरीका है। पहला, by watching their activities carefully, ठीक तरह से रिप्रेजेंटेटिव का एक्टिविटीज़ को देख करके, whether they are doing right or wrong, they are doing the right activity or the wrong activities को केयरफुली वॉच करके वो चेक कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, समय आने पे उसको क्रिटिसाइज भी करके। पार्ट बी, बाय नॉट गिविंग वोट टू देम, उनको वोट नहीं दे करके, बाय नॉट गिविंग वोट टू देम इन द नेक्स्ट इलेक्शन, आने वाले इलेक्शन में उनको वोट नहीं दे करके रिप्रेजेंटेटिव के मनमानी को चेक कर सकते हैं people। So this much today students. Now we shall take up the rest of the part tomorrow. We are seeing part E now. Question number 3. Question number 3 is, list the important steps taken by the Indian government for the benefit of the weaker sections। इस क्वेश्चन में हम लोगों को बतलाना है इम्पॉर्टेंट स्टेप्स जो इंडियन गवर्नमेंट ने ली है बेनिफिट के लिए। किसके बेनिफिट के लिए? वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, यानी कि जो वीकर सेक्शन है सोसाइटी का, उसके लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या क्या इम्पॉर्टेंट स्टेप्स लिए हैं उनके स्थिति में सुधार के लिए। सो वी आर टेकिंग 5 पॉइंट्स इन दिस क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट, इंडियन गवर्नमेंट बहुत सारा मेजर्स एडप्ट किए है। फॉर एग्जांपल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, जैसे SHG हो गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इस तरह का स्कीम्स ली है जिससे कि लोगों को अपने आप खुद स्वरोजगार में पा सके। दूसरा है लो बजट हाउसिंग स्कीम, घर प्रोवाइड की है कम दामों में गरीब लोगों के लिए। तो इस तरह के स्कीम से वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को फ़ायदा पहुंचाने का भरसक कोशिश की है इंडियन गवर्नमेंट। सेकेंड पॉइंट हम लोग देखते हैं मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम किसके लिए है?
स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए है। मिड डे मील स्कीम आने से पहले हम लोगों को ये नज़र आता है कि स्कूल में बच्चों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन जब से मिड डे मील स्कीम आया तो बच्चों का जो परसेंटेज है उसमें काफ़ी इंक्रीजमेंट हुआ और इससे लिटरेसी रेट में काफ़ी अंतर हुआ। थर्ड थर्ड स्टेप वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो है रिजर्वेशन वॉज प्रोवाइडेड फॉर SC ST एंड OBC। तो पहले भी हम लोग बात किए थे, टोटल जो परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन दिया गया है तीनों को वो 49.5% है। SC ST के लिए 22.5% है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था उसी समय इन दोनों को मिल चुका था। और OBC को बहुत बाद में मिला था, 1989 में मंडल कमीशन के जरिए OBC को दिया गया। 1991 में वो इम्प्लीमेंटेशन में आया। BP सिंह उस समय प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। तो 27% OBC को रिजर्वेशन दिया गया। तो ये हम लोग देखते हैं वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिजर्वेशन पॉलिसी के द्वारा उनका स्थिति को बेहतर करने का कोशिश किया गया। पॉइंट नंबर 4 में हम लोग देखते हैं कि स्कूल चिल्ड्रन को फ्री यूनिफॉर्म दिया जाता है, बुक्स दिया जाता है, स्टाइपेंड्स दिया जाता है और स्कॉलरशिप्स दिया जाता है। और जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है उनके लिए ये सब प्रोविज़न दिया गया है ताकि जो गरीब बच्चे हैं उनको फैसिलिटीज़ मिल सके, जैसे यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टाइपेंड्स के जरिए कुछ पैसा दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए। स्कॉलरशिप, जो तेज बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप दिया जाता है वीकर सेक्शंस के। पॉइंट नंबर 5 which is related with the girls student of weaker section, जो कमज़ोर तबके के जो गर्ल्स हैं उनको भी रिजर्वेशन कोटा दिया गया है। कहाँ पे? गवर्नमेंट स्कूल्स में एंड प्राइवेट स्कूल्स दोनों ही में, ताकि गर्ल्स स्टूडेंट्स को भी आगे बढ़ने का मौका मिल सके। क्वेश्चन नंबर 4, list the factors that create inequalities and hamper the success of democracy। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? हम लोगों को फैक्टर्स बतलाना है, लिस्टिंग करना है जो कि इनइक्वालिटीज़ क्रिएट करता है, असमानता लाता है सोसाइटी में, जिसके चलते ये हैम्पर करता है डेमोक्रेसी का सक्सेस होने में। डेमोक्रेसी को सक्सेस होने में जो फैक्टर्स हैम्पर करते हैं जिससे इनइक्वालिटीज़ आता है उसको हम लोगों को लिस्टिंग करना है। तो हम लोग इसमें 4 पॉइंट ले रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड कम्युनिटीज़। आज भी इंडियन सोसाइटी में हम लोग क्या देखते हैं? डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है कास्ट एंड कम्युनिटीज़ को लेकर के। फॉर एग्ज़ाम्पल, अपर कास्ट के लोग आज के समय में भी लोअर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट यानी भेदभाव करते हैं। जैसे कि आज के भी समय में हम लोग देखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में अनटचेबिलिटी यानी अछूत को प्रैक्टिस किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, some religious places ban the entry of people belonging to other communities। दूसरे कम्युनिटीज़ के लोगों को रिलीजियस प्लेसेस में एंट्री करना बैन कर दिए हैं कुछ रिलीजियंस के लोग। तो इसमें हम लोग जैसे कि बहुत सारे मंदिर को ही ले लीजिए, वहाँ पे आप देखिएगा लोअर कास्ट के लोगों का एंट्री बैन है। तो इस तरह से रिलीजियसली भी हम लोग देखते हैं कि रिलीजियस इनइक्वालिटीज़ भी चारों तरफ मौजूद है हमारे सोसाइटी में। थर्ड पॉइंट जो कि हम लोगों के डेमोक्रेसी को हैम्पर करता है और इनइक्वालिटी लाता है वो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ वो ठीक तरह से किया नहीं गया है सोसाइटी में, जो कि क्रिएट करता है गल्फ बिटवीन रिच
एंड पुअर, धनी और अमीर के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में एक खाई पैदा कर दिया है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि हमारे डेमोक्रेसी को सक्सेस करने के लिए बाधक बना हुआ है। नाउ पॉइंट नंबर 4, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट women that exists in all walks of life, जिसको हम लोग बोल सकते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी इनइक्वालिटी का एक बहुत बड़ा कारण है जो कि डेमोक्रेसी को हैम्पर करता है। इसके तहत हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत आज के डेट में वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव हर फील्ड में देखने को मिलता है, चाहे वो जॉब में देख लीजिए, चाहे सोसाइटी में देख लीजिए। इवन वी कैन सी सच टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एट आवर होम ऑल्सो। हम अपने घरों में भी देखते हैं किस तरह से वुमेन के साथ भेदभाव होता है। तो ये 4 पॉइंट है जिससे कि इनइक्वालिटीज़ पैदा होता है सोसाइटी में और डेमोक्रेसी को हैम्पर होता है इससे। क्वेश्चन नंबर 5, वाई हैव द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन नॉट रीच्ड एवरीवन। ये क्वेश्चन 2 पार्ट में है। सबसे पहला पार्ट पूछ रहा है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट हर तबके के लोगों तक क्यों नहीं पहुंच पाया, यानी SC ST OBC जो हैं सभी तक रिजर्वेशन का बेनिफिट क्यों नहीं पहुंचा। ये पहला पार्ट है। सेकेंड पार्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सजेस्ट 2 स्टेप्स, 2 स्टेप्स बताइए that can ensure development of all section of the Indian society। 2 स्टेप्स हम लोगों को सजेस्ट करना है जिससे कि हर तबके के लोगों का डेवलपमेंट को इंश्योर किया जा सकता है इंडियन सोसाइटी में। सबसे पहला पार्ट हम लोग लेंगे कि रिजर्वेशन सभी तक क्यों नहीं पहुंचा है। आंसर, द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन हैव नॉट रीच्ड एवरीवन। ये सभी तक नहीं पहुंचा है, इसका 2 कारण हम लोग बोल रहे हैं। ड्यू टू नंबर 1 हम लोग बोल रहे हैं लैक ऑफ प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स जितना भी लाती है इनके बेहतरी के लिए वो सब उन तक पहुंच ही नहीं पाता है। ये पहला कारण है जिससे कि सभी को बेनिफिट नहीं हो पा रहा रिजर्वेशन का। और दूसरा कारण है लैक ऑफ अवेयरनेस अमंग द वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लोग हैं उनमें अवेयरनेस जैसा चीज़ की कमी है, जिसके चलते उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि गवर्नमेंट उनके लिए क्या की है, जिससे कि उनको फ़ायदा नहीं पहुंच पाता है। नाउ लेट अस टेक अप द सेकेंड पार्ट में हम लोगों को 2 स्टेप बताना है जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट सोसाइटी का संभव हो सके। तो उसके लिए हम लोग 2 पॉइंट ले रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट, रिजर्वेशन शुड बी बेस्ड ऑन इकोनॉमिक स्टेटस। रिजर्वेशन इकोनॉमिक स्टेटस पे बेस्ड होना चाहिए इंस्टेड ऑफ कास्ट। देखिए अभी जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये कास्ट सिस्टम पे बेस्ड दिया यानी कि लिस्टिंग कर दिया गया है कौन कौन सा लोअर कास्ट है और कास्ट सिस्टम को बेस बना करके रिजर्वेशन दिया जा रहा है, जिसमें कि हम लोग सजेशन दे रहे हैं कि ये गलत है। ये कास्ट सिस्टम पे बेस नहीं होना चाहिए, इससे तो और ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ का भावना आएगा, बल्कि इसको कैसा बेस करना चाहिए, इकोनॉमिक स्टेटस पे बेस करना चाहिए, यानी कि जो गरीब हैं उन्हीं को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए कास्ट सिस्टम को बेस बनाने के बजाय। पॉइंट नंबर 2, एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स शुड रीच द पुअर एंड नीडी पीपल। पॉइंट नंबर 2 हम लोग बोल रहे हैं कि एजुकेशन को यूनिवर्सलाइज किया जाना चाहिए, सभी को राइट टू एजुकेशन जो है सभी तक पहुंचना चाहिए, और जितने भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं वो नीडी पीपल और ख़ास करके जो पुअर पीपल हैं वहाँ तक ज़रूर से पहुँचना चाहिए, तभी उन लोगों को फ़ायदा होगा
और इससे सोसाइटी ठीक होगा इंडिया का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये 2 पॉइंट अगर अपना लिया जाए तो हम लोगों का सोसाइटी का ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल है। So this much student today, and tomorrow we shall take up another chapter of civics part only, the next chapter, chapter number 19. Till then, goodbye.